Good evening. Today I am going to explain the merits or advantage of cooperative societies. What are the merit or advantage of cooperative societies? Here first merit is equality in voting rights. Second, limited liabilities. Third is stable expenses existence. Fourth is economical functioning. Fifth is support from government. Sixth is easy formation. Seventh is open membership. Now see one by one. First is equality in voting right. Cooperative society is functions on the basis of democratic pattern. They are based on the principle of one man, one vote. All members have equal right, equal chance to participate in management irrespective of their share capital. कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक पैटर्न पर काम करता है। यहाँ वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर काम होता है। जितने भी मेंबर होते हैं उनको एक वोट वन वोट डालने का अधिकार होता है। वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेयर कैपिटल, चाहे उनके पास में कितना भी शेयर कैपिटल हो, लेकिन वोटिंग राइट वन होगा, वन मैन वन वोट। Second is your limited liabilities. The liability of member of cooperative society is limited to the extent of their share capital. यदि मेंबर या कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर की लाइबिलिटीज़ लिमिटेड होती है उनके शेयर कैपिटल तक। यदि मेंबर अपना शेयर कैपिटल की पूरी अमाउंट सोसाइटी को दे दिया है तो फ्यूचर में उनसे किसी भी तरह का पैसा डिमांड नहीं किया जाता है। यहाँ तक कि क्रेडिटर डोंट हैव या क्रेडिटर कैन नॉट हैव क्लेम ओवर द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ member of the societies. Third is stable existence. We know society come into existence after registration, and after registration society gets separate entity from its members. So society has stable existence. The death, insolvency or incapability of member does not affect the life of the society. कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइफ स्टेबल होता है। सोसाइटी का फॉर्मेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद सोसाइटी का को लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है जो मेंबर से अलग होता है। किसी मेंबर के डेथ कर जाने, इनकेपेबल हो जाने, इंसॉल्वेंसी हो जाने से सोसाइटी के लाइफ पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। सोसाइटी हमेशा चलती रहती है। फोर्थ इज इकोनॉमिकल फंक्शनिंग। सोसाइटी all the activities of societies are performed by the members. Society, whatever the goods purchased by the society that are directly purchased from the manufacturers, so middlemen are eliminated, and that's why society gets goods or raw material at low cost. The cooperative society do not maintain large stock, and due to cash trading there are no bad debts. सोसाइटी का जितना काम होता है मेंबर के द्वारा किया जाता है। सोसाइटी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल को अपने काम पर नहीं रखती है। सोसाइटी गुड्स या रॉ मटेरियल जो है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करती है, इसलिए लो कॉस्ट पर ये चीज़ें अवेलेबल हो जाता है। सोसाइटी को लार्ज स्टॉक भी मेंटेन नहीं करना पड़ता है। सोसाइटी जो भी सेल करती है वो कैश सेल होता है, क्रेडिट में गुड्स नहीं बेची जाती है। नतीजा होता है कि बैड डेब्ट्स भी नहीं होता है।
So the function of society is economical. Next is your support from government. Society gets many benefit from the government. The government provides various concessions and rebate in taxes. These organizations can get raw material at subsidized rates. Government also offer loan at low rate of interest and easy term and condition. सोसाइटी को गवर्नमेंट से बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है. गवर्नमेंट टैक्स में रिबेट देती है. सोसाइटी को रॉ मटेरियल भी सब्सिडाइज्ड रेट पर प्राप्त होता है. सोसाइटी को यदि लोन की ज़रूरत होती है तो वो भी गवर्नमेंट के द्वारा लो रेट पर और इजी टर्म एंड कंडीशन पर प्रोवाइड किया जाता है. नेक्स्ट इज इजी फॉर्मेशन. The formation of society is also easy. For the formation of society, only 10 adult members are required having the common interest. केवल 10 मेंबर की ज़रूरत पड़ती है. And registration process is quite easy and does not involve any legal formalities. सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराना भी काफ़ी इजी होता है. इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह नहीं होता है. सो फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी इज़ क्वाइट इजी. मिनिमम 10 members are required. Registration process is quite easy and does not involve any legal formalities. Next is your open membership. Any person having common interest can become the member of the society. There is no restriction on the basis of caste, creed, blood, religion. Any person can join or leave the society as per his or her will or wish. सोसाइटी में ओपन मेंबरशिप होता है. कोई भी व्यक्ति जिसका कॉमन इंटरेस्ट होता है सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. मेंबरशिप पर किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है. किसी भी कास्ट, रिलीजन, क्रीड, ब्लड का व्यक्ति सोसाइटी का मेंबर बन सकता है. कोई भी व्यक्ति सोसाइटी को ज्वाइन कर सकता है और छोड़ सकता है. ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है. यानी लोग अपनी इच्छा से, डिज़ायर से सोसाइटी के मेंबर बन भी सकते हैं और सोसाइटी से रिजाइन भी कर सकते हैं और सोसाइटी को छोड़ भी सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज और बेनिफिट्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी.